क्लास 10th का चैप्टर लाइट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को समझेंगे। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ images by the concave mirror. Now let's start with the first case. Case first. As you all know that this is a concave mirror and this line is known as the principal axis. That point is also known as the pole, and the center of the curvature of the mirror is known as the center of curvature. So this is the simple some points, basic points of the mirror or the chapter reflection. Now let's start with the case first. In the case first, all the light rays falls on the mirror from infinity. It means the light rays are coming from infinities. These light rays after reflection falls on a point like this. It means overall क्या हुआ केस में, rays of light आई infinity से, these all are the incident rays and they finally fall on a point. That point is known as the focus. This point is known as the focus. So this is the first case or the first image formation by the concave mirror. इसमें क्या होता है, लाइट रेज आती हैं इंफिनिटी से, मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद फॉल करती हैं। अब देखो आप रिफ्लेक्शन के लिए भी यहाँ पे एरो से हम शो करते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है लाइट, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे लौटती है, और बाकी रेज के लिए हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, और ये फाइनली फॉल होती है एक पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको हम F से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ ये तो हमारा केस फर्स्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। बट इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को और याद रखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज द, मैं आपको बताता जाता हूं, आप लोग लिखते जाएं। द फर्स्ट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. The position of the object in that case is the infinity. Second one is the position of image. What is the position of image? In that case the position of image, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, the position of image is at focus on same side as the object is placed. Okay. Now third one is what is the size of the image? The size of the image is highly diminished. It means it is completely a point size. ये complete point की तरह है बस. And finally, the fourth point will be what is the nature of the image. And the nature of the image, the nature will be, it is inverted and real. The image will be real and inverted, because after reflection, light हमें एक पॉइंट पे मिल रही है। ये पॉइंट में बी अ पेपर, में बी अ स्क्रीन हो सकती है। सो इमेज विल बी द रियल इमेज, एंड रियल इमेज ऑलवेज विल बी एन इन्वर्टेड इमेज। सो देयर आर 4 पॉइंट। फर्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन एट फोकस, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ कम ऑन द केस 2. Now guys, come on the second case. In the second case, जैसा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बट इन द सेकंड केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम इसे बिहाइंड नहीं कहेंगे, बिहाइंड इस तरफ आ जाते हैं, हम इसे क्या कहेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, or we can say the object is placed between infinity and center of curvature. Object is placed between infinity and center of curvature. When object is placed between infinity and center of curvature, then object looks like this. Now a ray of light comes from object AB and falls on the mirror and is reflected back. After reflection, it falls on a
the falls on a point, that point is known as the focus. हमें पता है जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जैसे फर्स्ट केस में थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा फोकस पे गिरती है। वो हमेशा कहाँ पे गिरती है? फोकस पे गिरती है। और इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। हमें ये सिंपली पता है। और इसी केस में जो सेकंड रे ऑफ लाइट होगी, अब हमें उसे कैसे लेना है ये समझना है। द सेकंड रे ऑफ लाइट goes from center of curvature, वो center of curvature से जाएगी। after reflection they return back to own its own path, मतलब अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है, like this, ऐसे गई और ऐसे जाने के बाद जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है वो अपने पाथ पे ही रिटर्न होती है, तो हमें समझ लेना है जैसे ये मिरर पे से रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ही मूव कर जाएगी। नाउ वी गेट अनदर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पोजीशन ऑफ द इमेज। हमें ये समझ में आ गई कि इमेज हमारी यहाँ पर है एंड द नेम ऑफ दैट इमेज इज A-B'। सो इन द सेकंड केस फर्स्ट रे ऑफ लाइट, जो पहली रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है, बिकॉज जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इन द सेकंड केस जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमें एक पॉइंट मिलता है एंड दैट पॉइंट शोज द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ again there are 4 points. First one is the position of the object. Position of the object हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। The position of the object is beyond the center of curvature, or we can say it is placed between the infinity and center of curvature. The position of the image will be क्या होगी? Between center of curvature and the focus. Between center of curvature and the focus. जो इमेज की पोजीशन है वो C और F के बीच में है। जो इमेज इज the formation of image जो होगी वो क्या है? Between C and F. It means image is formed between C and F. Now in third, what is the third point? The third point is the nature of the image. Image यहाँ पे कैसी है? Real है, inverted है। Inverted image always be real, so we can say the nature of the image will be real and inverted. And the fourth point is the size of the image. हम यहाँ size की अगर बात करते हैं तो ये इससे छोटी है, then we can say the image is diminished or smaller than the size of the object. ये कैसी image है? Diminished है। So this is the second case. Now come on the third case. Now in case third, the object is placed at the center of curvature. फर्स्ट केस में at infinity, सेकंड केस में beyond center of curvature। अब हम उसे और आगे लाए, center of curvature पे प्लेस करा। जो फर्स्ट रे होगी वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, मैंने आपको कई बार बताया है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे होगी ये फोकस से जाएगी और कुछ इस तरीके से निकलेगी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये हमें पता है, बहुत इजी। अब इसमें जो सेकंड रे है वो हमें कहां लेनी है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो जो सेकंड रे होगी यहां से फोकस से जाने वाली है और आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा क्या, आप देखना। ये हमने भेजी कुछ इस तरीके से। आपको थोड़ा सीधा ड्रॉ करना है बिकॉज मैं व्हाइट बोर्ड पे हूं तो हो सकता है थोड़ी तिरछी आ रही हो। और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यहां जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमें दो रेस का क्रॉसिंग के बाद एक पॉइंट मिला एंड दैट पॉइंट यहाँ पे एक इमेज बनेगी, just inverted image, because the object is AB and the image will be A-B'. So image is also formed at the center of curvature. So in third case the object is placed at the center of curvature, image is also formed at the center of curvature, nature of the object is inverted and real and inverted and the size will be the same. size कैसा होगा? सेम। तो ये हमारा थर्ड केस है और इसे हमें इजीली समझना था, तो जो इस तरीके से हमने किया। ओके, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी फॉर जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, अनदर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए जाके हमें एक पॉइंट पे मिलती है, एंड दैट एट दैट पॉइंट द इमेज जो होगी फॉर्म हो जाएगी, और the size of the image will be the same. So this is the third case. Now come on the case fourth. Now come on the case fourth. In case fourth, the object is placed between center of curvature and the focus. We know the focus is, जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है, बीच में होता है सी और पी के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। तो जो हमें ऑब्जेक्ट लेना है वो प्लेस कहाँ करना है, बिटवीन सी एंड एफ। सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस करा। सिमिलरली जैसे हमने और केसेस में करा, a ray of light passing through the object falls on the mirror and after reflection it passes through the focus। कहां से पास होगी, फोकस से होगी। तो पहला केस तो आपका ये हुआ, it passes through the focus। और जो सेकंड, अब जो सेकंड पोजीशन की बात करनी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने उस केस में किया था, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट फोकस से, जो एक रे ऑफ लाइट होगी वो फोकस से जाएगी। और भी तरीके होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप फोकस से ही भेजें। आप एक सी से भी रे भेज सकते हैं, बिकॉज जो बोर्ड का साइज है वो छोटा है। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से गई, सीधी आपको बनानी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल जाएगी जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जो रे होगी हमें कुछ इस तरीके से जाती हुई मिलेगी। यहाँ पे हमें इन दोनों का क्रॉस सेक्शन मिला, तो यहाँ पे हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल गया। इमेज विल बी AB and the inverted object will be AB and the inverted image will be A dash B dash। So in that case, first ray of light passes parallel to the principal axis. After reflection, it passes through the focus, and second ray of light falls on the mirror, passes through the focus, and after reflection, it meets the first reflected ray, and image is formed। The name of the image will be A dash B dash। तो फोर्थ केस कुछ इस तरीके का है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, the position of the object is between C and F, center of curvature and focus। The position of the image will be beyond C। यहाँ पे beyond C on the same side, in the and nature will be real and inverted because the image inverted, ये हमें इस केस में मिल रही है real and inverted। and what is the size, यहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कुछ बड़ा है, तो साइज will be magnified। so this is the fourth case। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको स्केल का यूज करना है, तो थोड़ा बहुत जो तिरछापन है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमें समझना है कि हमें बनाने कैसे हैं। ओके, now come on the case fifth। Now come on the case fifth। In this case the object is placed at focus। अब हम शुरू से देखते हैं, पहले इंफिनिटी पे, then beyond C, then C, then between C and F। Now come object is placed at focus। अब हमने फोकस पे प्लेस करा, तो सेम एक रे पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। थोड़ा सा रहा आप समझने से, फोकस से गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, बिल्कुल फोकस से ही जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं ताकि समझ में आए। अब सेकंड जो इसमें इमेज जो हमें बनानी है, जो लाइन लेनी है रे, इंसिडेंट रे, वो हम ऐसे लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देखना, एक रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी, ये हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये मैंने इसलिए डॉटेड बना दिया, मतलब एक रे ऑफ लाइट हमें ये मान के चलना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आती है वो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। तो जब ये लौट के जा रही होगी तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी रिटर्न पे। तो अब यहां हम देखते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये पैरेलल हैं, और पैरेलल रेज का कोई एंड नहीं होता। हम ये मानते हैं जो पैरेलल रेज होती हैं वो कभी मीट नहीं करती किसी पॉइंट पे, बस इंफिनिटी पे मीट होके जाके मिलती हैं। जैसे आप दो पटरी को देखें, ट्रेन की जो पटरी होती हैं वो पैरेलल ही चलती रहती हैं, बट अगर हम दूर देखें तो ऐसा लगता है मिल जाती हैं। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे प्लेस करा,
but the image is formed at infinity. Okay, now what will be the size of the image? Size of the image magnified होगा जब infinity पे बन रही है. Size of the image will be the magnified. Size उससे ज्यादा बड़ा होगा. What is the nature? Because inverted image है, so it is also the real in nature. The nature will be real and inverted. So this is the case 5th. Now come on the case 6th. In case 6, the object is placed between focus and pole. हम आगे लेते हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को. Infinity beyond C, between C and F now placed between F and P. ये सबसे डिफरेंट केस है. वही सिंपल, जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट हमारी कहां से निकलती है हमें पता है, फोकस से. इस तरीके से. सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरी रे ऑफ लाइट लेंगे हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हम मानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और जब ये आएगी तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिटर्न बैक हो जाएगी. और यहां पे हम देखते हैं कि ये दोनों रेस कैसे हो रही हैं, और ज्यादा फैल रही हैं. इसका मतलब है इंफिनिटी पे भी हमें इमेज नहीं मिलने वाली है. इन दैट केस ये जो रेज होती हैं, अगर हम इनकी एक वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से, तो we found that a point is obtained on the behind the mirror, and that point shows the position of the image, and image is known as A dash B dash. It means image is formed behind the mirror. मतलब ये इस केस में हमें इमेज मिरर के अंदर दिखने वाली है. बाकी 5 केसेस में इमेज हमें मिरर के अंदर नहीं दिखेगी. वो कैसी है नेचर में, रियल और इन्वर्टेड. अब इस केस में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P. द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर. द नेचर ऑफ द इमेज विल बी, यहां पे जो नेचर है इमेज का वो कैसा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल. ये वर्चुअल है, ये एक आभासी इमेज है. आभासी का मतलब होता है जो मिरर के अंदर दिखती है, हमें होती है, महसूस होती है बस, जो रियल में नहीं होती है, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते हैं, जिसको अगर हम डेफिनेशन में अगर यूज करें तो द इमेज व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट ऑन स्क्रीन, दैट इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. जिसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. तो दिस इज जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द साइज विल बी मैग्नीफाइड. तो यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो कैसा है, मैग्नीफाइड. तो हमें ये 6th केस यहाँ तक का याद रखना है. सिंपल F और P पे रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, दूसरी इस तरीके से, देन वी गेट द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ कम ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर. Now come on the next part, the formation of different images by the convex mirror. Convex mirror में जो center of curvature होता है वो right side में, same as the focus will be also on the right side. But object always be placed on the left side of the mirror. हमें तो mirror के left side में place करना है. So in case first, object is placed anywhere in front of mirror. Suppose that object is placed at that place. Now first मैंने आपको बताया parallel to the principal axis. In that case, when ray of light passes parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus. So इस केस में ray of light कुछ इस तरीके से फोकस से जाएगी. It is the virtual image, and the real will be after reflection like this, and another ray directly passes through the
सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सी से जाने वाली रे वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब जो था यहाँ पे कि एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई, हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इससे जाए। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कर लेते हैं इसे ठीक। ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहां होता क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through the mirror, then it reflects back on its own path, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, बट उसकी वर्चुअल इमेज हमें कुछ यहां जाके मिलती है, that will be the virtual। तो यहाँ पे जो हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला, that point shows the formation of image will be A dash B dash, object will be A B। now in that case the position of the object is anywhere placed in front of mirror, the object will be placed anywhere in front of mirror, कहीं भी place करते हैं। the image, the formation of image is formed behind the mirror, image is formed behind the mirror, पीछे बनी मिरर के। और नेक्स्ट अगर हम इसमें बात देखें, what is the nature of the image, the nature will be, ये straight है, erect है, erect always be virtual, तो nature will be erect and virtual। और size की बात करें तो it is diminished, the size of the image will be diminished। now come on the second case of formation of image by the convex mirrors, come on the second case। in case 2 the object is placed at infinity in front of mirror, infinity पे प्लेस करा, पहले केस में हमने कहीं भी प्लेस कर दिया था, अब हम उसे infinity पे प्लेस करते हैं। तो infinity पे जब हम प्लेस करते हैं तो पैरेलल रेज जाती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, to the principal axis। when these parallel rays falls on the mirror after reflection, ये फोकस पे मिलती हैं, तो फोकस पे कुछ इस तरीके से ये मिल जाएंगी। मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है फोकस ताकि कंफ्यूजन ना हो। इमेज हमारी फोकस पे बनी, सिंपली ये हमारी इमेज बनी, बट हमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर के थ्रू वो कुछ इस तरीके का होगा। so this will be the reflection of the object placed at infinity, the image is formed at focus। now in that case object is placed at infinity, object is placed at infinity, image is formed at focus। the nature of the image, because right side में behind the mirror, the nature will be the virtual and erect। ये कैसी होगी, erect। the size of the image will be highly diminished, बहुत छोटी है साइज में। so ये यहाँ पे हमारा इमेजेस का पार्ट खत्म होता है। टोटल 8 इमेजेस हैं मिरर के केस में, 6 फॉर कॉन्केव मिरर, 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। थैंक यू। टू कनेक्ट विद यू ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो।